ناظرین میں آج موجود ہوں امپیریل مارکی اسلام آباد کے اندر، جہاں جماعت اسلامی اسلام آباد کی خواتین کی جانب سے ایک بہت بڑا خواتین کنونشن کیا گیا۔ یہ کنونشن کیوں کیا گیا آئیے جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی خواتین ونگ کی ذمہ دار میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ چونکہ پورے ایونٹ کو ہم نے دیکھا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس سکسیزفل ایونٹ کے اوپر، لیکن ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ یہ خواتین کنونشن ہوا کیوں، وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس وقت سراج الحق صاحب نے جو تقریر کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہے، تو ظاہر پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہو۔ اور اس وقت اگر ہم اپنی پوری تاریخ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے مقررین نے بتائی بھی، تو اس وقت جو لوگ پاکستان پر مسلط ہیں تو انہوں نے پاکستان کو کرپشن، غربت، مسائل کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نیک، صالح، دیانتدار قیادت ملے، اور ہم خواتین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صالح اور دیانتدار قیادت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے، کہ جس میں جماعت اسلامی کا پچھلا ریکارڈ بھی سامنے ہے کہ جب وہ حکومت میں رہے ماشاءاللہ انہوں نے بہترین ڈیلیور کیا، امانت اور دیانت کے ریکارڈ قائم کیے انہوں نے، اور ملک کی فلاح کے لیے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں اگر تو جماعت اسلامی ہمہ وقت مصروف ہے عوام کی خدمت کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے، اپنے محدود وسائل کے باوجود ہم ہمہ وقت لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ تو مین ہمارا مقصد یہ تھا کہ خواتین کے اندر یہ شعور اور آگاہی پیدا کرنا کہ انہیں کس قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اس لیڈرشپ کو واقعی جو پاکستان کی حقیقی لیڈرشپ ہے اگر وہ ان کے کام میں آتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک عظیم انقلاب آ جائے گا جو عوام کے لیے ایک فلاحی انقلاب ہوگا، جس میں عوام کی حالت سدھرے گی، جس میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، جس میں ہمارے ادارے بہتر ہوں گے کہ ہمیں ہر جگہ رونا ہے کہ ہر ادارے خراب ہے، نظام خراب ہے سارا، تو جب نظام کی اصلاح ہوگی تو ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کی جو خواتین ونگ ہے ان کو ہم نے کوئی بھی پولیٹیکل سینیریو ہے، کوئی بھی پولیٹیکل ایشو ہے تو اس میں ہم نے جماعت اسلامی جو میل ونگ ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھا ہم نے، لیکن اس طرح کا کنونشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین گھروں سے نکلی، ان کو آپ نے موبلائز کیا، یہ کتنے مہینوں کی محنت تھی آپ کی اور جس کا ثمر آج آپ نے پایا، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے کوئی آپ کو ثمرات ملیں گے آگے ان فیوچر؟ انشاءاللہ۔ اچھا یہ مہینوں کی محنت نہیں ہے، یہ سالوں کی محنت ہے کہ اسلام آباد کے کوچے کوچے میں ہمارے درس قرآن کے پروگرام موجود ہیں، ہماری کلاسیں موجود ہیں، ہمارا خدمت خلق کا وہ کام موجود ہے، تو ہم ہمہ وقت لوگوں کے مسائل حل کریں گلی محلے میں، اور ہماری کوئی 250-300 کے قریب جو ہیں وہ درس کے حلقے ہیں پورے اسلام آباد کے اندر۔ تو یہ چند دنوں کی محنت نہیں ہے، یہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے شاید اسی مہینے کے اندر یا اس سے پچھلے مہینے میں کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک کنونشن کرنا ہے، لیکن یہ جو ہماری دعوت ہے یہ تو جب سے اسلام آباد بنا ہے تو الحمدللہ کہ وہ پہلی ناظمہ کے ساتھ بھی کام کیا میں نے، تو تب سے ہی میں جماعت اسلامی کے اندر موجود ہوں، تو یہ تو ہماری سالوں کی محنت ہے کہ کچھ محنت کرنے والے چلے گئے اور کچھ ابھی تک موجود ہیں، تو وہ محنت ہے جس کا ثمر ہے کہ آج یہاں پہ اتنی خواتین جمع ہوئی، ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، اور انشاءاللہ ہم سب اپنی مردانہ قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو اسلامی اور خوشحال پاکستان انشاءاللہ جی ہم بھی دیکھنا چاہیں گے پاکستان کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان۔ اچھا میں جاننا چاہوں گا کہ خواتین ونگ کے اندر آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، پورا سسٹم آپ کا کیا ہے، اوپر سے نیچے تک آپ کی جو ہیرارکی ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، چونکہ کافی سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ ناظمہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کارکنان کن کو بولتے ہیں، رکن کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ
आम जो लोग हैं ना उन इन इस्तिलाहात से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आसान फहम ज़बान में आप ज़रा हमारे नादरीन को बता दीजिए कि पूरे जमात इस्लामी ख़वातीन विंग का जो सेटअप है, सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है। उसमें ऐसा है कि बेसिकली तो हम मर्दाना नज़म के तहत ही हैं। अच्छा, अलग से डिसीजन बॉडी आपकी नहीं है? डिसीजन बॉडी नहीं, मैं बताती हूँ आपको कि हम मर्दाना नज़म के तहत हैं। जो पॉलिसी मैटर्स बनाता है वो हमारा मरकज़ी शूरा बनाती है मर्दाना नज़म, लेकिन उसके अंदर हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। बाकायदा 10 इलेक्टेड ख़वातीन होती हैं जो मर्दाना शूरा की मेंबर है। मतलब वो डिसीजन मेकिंग के रोल के अंदर अपना डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारी ख़वातीन की शमूलियत है। ठीक है। उसके बाद हमारा अपना जो सिस्टम है उसमें हम अपनी इस्तिलाह में उसको कय्यमा कहते हैं। अच्छा। और लेकिन जनरल सेक्रेटरी आप उनको कह लें, ठीक है, तो वो होती हैं सबसे ऊपर, फिर उनकी नायबीन होती हैं, फिर उसके बाद शूरा होती है, हल्का ख़वातीन की अपनी अलग शूरा है। वो शूरा होती है जो डिसीजन भी करती है और इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। और उसके नीचे फिर हमारे सूबे हैं, सूबों की नाज़मात है। इस वक्त जैसे पंजाब है हमारा, तो पंजाब को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, शुमाली, जनूबी और वस्ती। ठीक है, क्योंकि अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो सूबों की एक ही सूबे में हमारी 3 नाज़मात हैं। जैसे इसी तरह से बाकी भी सिंध की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, ठीक है, और इसी तरह हमारी बाकी नाज़मात हैं, यानी सूबाई नाज़मात हैं। ठीक है। फिर उनके नीचे ज़िला का नज़म काम करता है। ये जैसे ज़िला इस्लामाबाद, राइट, कि ये प्रोग्राम ज़िला इस्लामाबाद का प्रोग्राम था, इसमें पिंडी शामिल नहीं है। अच्छा, इसमें पिंडी शामिल नहीं है? पिंडी शामिल नहीं है, पिंडी का अलग नज़म है, तो पिंडी ज़िला है। ठीक है। और ये इस्लामाबाद ज़िला है। तो ये अभी आपने जो देखा कन्वेंशन, तो ये सिर्फ ज़िला इस्लामाबाद का कन्वेंशन। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगा कि लाजमी बात है, इतना बड़ा मार्की के स्टाफ को हायर करना, मार्की की जगह को अपने लिए मख्तस करना बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है। फिर लोग आए, लाजमी बात है वो फ्री में तो नहीं आ गए, ये अपनी कन्वेंस में नहीं आए होंगे तो खर्चा आया होगा। तो ये तमाम की तमाम जो फंडिंग है ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? ये देखिए, हमारे जो दर्स के हल्के हैं उसमें हर तरह के हमारे दर्स के हल्के हैं। पोश इलाकों में भी हमारा काम है और हमारा छोटे इलाकों में भी काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पोश इलाकों से बल्कि हमारे हर इलाके से इआनत के नाम पे जमात के सारे कारकुनान फ़ंड देते हैं, जमात के सारे अरकान फ़ंड देते हैं। और जो ज़रा तबका हमारा मौसर है, अमीर तबका है, वो बहुत ज़्यादा फंड्स देते हैं, इलाकों में भी देते हैं। तो उसमें ये फंड उस तरह से मतलब अपनी मदद आपके तहत ही आप तमाम चीज़ें। और ये सारे अखराजात तकरीबन हमने खुद किए हैं। मद्दों से हमने कहा था कि आप ट्रांसपोर्ट का ज़िम्मा ले लें, तो ट्रांसपोर्ट का ज़िम्मा हमने उनको दिया, वरना ये हल्का ख़वातीन ने सब खुद किए। अच्छा, ये खाना भी हमने खुद दिया है, ये मार्की भी हायर हमने की है, और बाकी ये सारा इंतज़ाम हमने खुद किया। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपना मैनिफेस्टो दें जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो ख़वातीन उस तरीके से शाना बशाना होकर काम नहीं कर रही जिस तरह हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। और ये थ्योरी भी पेश की जाती है कि जब तक ख़वातीन शाना बशाना काम नहीं करेंगी तो वो जो माशरा है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, उनकी इकॉनमी जो है वो अनस्टेबलाइज ही रहेगी जिस तरीके से हम फेस कर रहे हैं। तो जब जमात इस्लामी की लेट सपोज हुकूमत आ भी जाती है तो लोगों को ये भी खदशा रहता है कि ये तो ख़वातीन को बंद कर देंगे, घरों तक महदूद कर देंगे, या ख़वातीन को टोपी वाले बुरके पहना देंगे, और वो एक जो प्रिटेंड ये किया जाता है कि उनको जैसे पत्थरों के दौर में पहुंचा दिया जाएगा, या ज़माना जालियत की अल्लाह माफ़ करे मिसालें दी जाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे लेंगी, और अपने आपके सामने एक रियासत का तस्वुर क्या है, और कैसे पाकिस्तान को आप एक मॉडर्न सोसाइटी देखना चाहेंगी, या कैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी आप बना सकती हैं? देखिए, हमारे सामने पाकिस्तान का जो तस्वुर है तो वो एक इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर है। वो तस्वुर ये वही तो नहीं है जो खान साहब भी देते थे मदीना की रियासत? नहीं। अच्छा। वो नहीं, वो तो एक थेरेटिकल बात थी ना। ठीक है। हम प्रैक्टिकली इस्लाम का वो निज़ाम कायम करना चाहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक ने किया। तो आप ये देखें कि वहाँ ख़वातीन पर पाबंदी थी। एक औरत भी आपकी ऊँट की मार पकड़ के खड़ी हो जाती कि उमर मेरे सवाल का जवाब दो, तो तब तुम जा सकते हो आगे। तो वहाँ पर उनकी शूराओं के अंदर ख़वातीन शामिल थी, फैसले करने में, उनके मुहासबे करने में,
हर जगह कहीं औरत पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, तालीम के मौके औरतों को हासिल थे। और इवन ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें हम, तो वो तो जंगों तक में औरतों ने हिस्सा लिया, तो हमारे सामने तो इस्लामी रियासत की वो मिसाल है। तो हमारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में मौजूद है। हमारी ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, PhDs हैं, और इतने पढ़े लिखे लोग जमात इस्लामी के अंदर शामिल हो जा रहे हैं। हमें तालीम के मौके भी हासिल हैं। ये पर्दे में किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कराए, ये हमने खुद समझ के किए हैं। जमात कोई टोपी वाले बुर्के नहीं पहनाती, कोई ये पर्दे नहीं कराती जमात। हमने अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से ये पर्दा किया, कुरान को समझ के, इस्लाम को समझ के। और जब हम कुरान और इस्लाम को समझते हैं तो फिर सब पर्दा भी कर लेते हैं और सब कर लेते हैं, तो फोर्स तो हम किसी को नहीं करते। राइट। तो इसके अलावा कोई आप पाकिस्तान की ख़वातीन के नाम को अपना पैगाम देना चाहें? पाकिस्तान की ख़वातीन के नाम मेरा यही पैगाम है कि अब जिस तरह अवाम को शऊर की ज़रूरत है, इसी तरह पाकिस्तानी ख़वातीन को भी शऊर की ज़रूरत है। हम आज तक ये समझ नहीं पा रहे कि ये लोग जिनको हमने सरों पे मुसल्लत किया हुआ है, जिनको हम इक़्तिदार में लेके आए हुए हैं, ये हमारे खैर खा नहीं हैं कि इनको अपने सरों से हटाएं, अमानतदार और दयानतदार की आदत लाएं, तराजू पे मोहर लगाएं और अमानतदार और दयानतदार की आदत लाएं, ताकि मुल्क की तकदीर समझ। चलें, मैं जी इंतहाई मशकूर हूँ आपका, दोबारा आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।